لاہور فضائی آلودگی کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے۔ شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 521 ریکارڈ کی گئی ہے۔ یو ایس کونسلیٹ میں آلودگی کی شرح 995 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ جبکہ ماہرین کی شہریوں کو ماسک لگانے کی ہدایات جاری کی جا چکی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شہر میں بارش کا تاحال کوئی امکان موجود نہیں ہے، تو شہر لاہور فضائی آلودگی کے اعتبار سے پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 359 ریکارڈ کی گئی ہے۔ یو ایس کونسلیٹ میں شرح آلودگی 995 پر جا پہنچی۔ ہمارے ساتھ کومل اسلم موجود ہیں، مزید احوال ان سے جانیں گے۔ کومل، اپڈیٹ کیجئے، کیا صورتحال ہے آج شہر لاہور میں اسموگ کی؟ جی بالکل، اسموگ صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو باغوں کا شہر ایک بار پھر اسموگ کی لپیٹ میں ہے۔ اسموگ نے تمام حدیں پار کرنا شروع ایک بار پھر سے کر دی ہیں۔ آج بھی لاہور میں AQI کی مجموعی شرح 521 تک جا پہنچی ہے۔ وہیں لاہور کے مختلف علاقوں کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ آلودہ ترین علاقہ یو ایس کونسلیٹ 995 یعنی کہ 1000 کی شرح تک جا پہنچ رہی ہے۔ اسموگ ایک بار پھر لاہور کو برے طریقے سے متاثر کر رہی ہے۔ لاہور کے باقی علاقوں کی بات کرتے ہیں تو فیس اے DHA میں 916 ہے، جٹھا پاک میں 842 ہے، غازی روڈ انٹرچینج میں 728 ہے، اور اسی طرح عسکری ٹائم میں 728 ہے، اور جوہر ٹاؤن اطراف 613 AQI کی مجموعی شرح جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ محکمہ ماحولیات سے جب اس بارے دریافت کیا گیا تو ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ لاہور شہر میں ہوائیں آج ایک بار پھر سے ساکن ہے۔ ہوائیں نہ چلنے کی وجہ سے اور ٹیمپریچر کم ہونے کی وجہ سے لاہور شہر میں اسموگ صورتحال نے جو ہے وہ لاہور شہر کے باسیوں کا سانس لینا بھی محال کر دیا ہے، اور لاہوریوں کو احتیاط برتنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وداؤٹ ماسک گھروں سے باہر نہ نکلا جائے، کیونکہ صورتحال جو ہے وہ آج کافی زیادہ تشویشناک نظر آ رہی ہے۔ ماہرین نے موسمیات کی جانب سے بتایا گیا کہ لاہور شہر میں بارشوں سے متعلق کوئی امکانات موجود نہیں ہیں، یعنی کہ آج دن بھر لاہور میں فضائی آلودگی کے ذرات جو ہے وہ لاہور شہر کی فضا کو برے طریقے سے متاثر کرتے چلے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بات کی جائے شمال مغربی ہواؤں کے حوالے سے تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 19 دسمبر یعنی کہ کل لاہور شہر میں شمال مغربی ہوائیں جو ہے وہ داخل ہو رہی ہیں، جو کہ اچھی سپیڈ کے ساتھ ہوں گی، اور صبح کے اوقات میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لاہور شہر کی فضا آلودہ ترین رہے گی، یعنی کہ ٹیمپریچر کم ہوگا اور فضا جو ہے وہ دھندلائی رہے گی، جبکہ 9-10 کے قریب جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہواؤں کی رفتار کافی تیز جو ہے وہ لاہور شہر میں انٹر ہوں گی، اور یوں جو ہے وہ لاہور شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح میں واضح کمی ریکارڈ کی جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 20 دسمبر کو صبح کے اوقات میں بھی صورتحال جو ہے وہ اسموگ کی حوالے سے جو ہے وہ کافی زیادہ خطرناک دیکھی جا رہی ہے، جبکہ 10-11 بجے کے قریب ہوائیں جو ہیں وہ کافی رفتار کے ساتھ لاہور شہر میں انٹر ہوں گی، جو کہ لاہور شہر میں فضائی آلودگی کو کم کرنے میں اپنا کردار نبھائیں گی۔ ایسا محکمہ ماحولیات اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ 19 اور 20 کو صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس کافی زیادہ خطرناک حد تک ریکارڈ کیا جائے گا، جبکہ 11 بجے کے بعد جو ہے ہوائیں کافی تیز رفتار کے ساتھ لاہور شہر میں انٹر ہوں گی، جو کہ آلودہ ذرات کو اپنی رخ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ہمراہ کہنے کے لے کر جو ہے وہ چلتی چلی جائیں گی، اور یوں جو ہے وہ لاہور شہر میں ہواؤں کا سلسلہ لاہور شہر کی فضا کو بہتر کرنے میں۔ بہت شکریہ کومل اسلم۔ ابھی آپ کو بتائیں، محکمہ بلدیات نے نکاح خاں کی تعلیم میٹرک مقرر کرنے کا فیصلہ دے دیا۔ نکاح خاں کا میٹرک کی تعلیم یا پھر کسی دینی مدرسے کی میٹرک کے برابر تعلیم ہوگی۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ایڈیٹر بیوروکریسی کیسر کھوکھر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی کیسر کھوکھر۔ بلدیات حکومت پنجاب نے جو نکاح خاں تھے رجسٹرڈ نکاح خاں، ان کی ایجوکیشن جو ہے ان کی تعلیم کم از کم میٹرک کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کی گئی ہے۔ اس سے قبل جو نکاح خاں تھا اس کی ایجوکیشن مقرر نہیں تھی، جتنی مرضی ایجوکیشن کا جو ہے وہ ان پڑھ بندہ جو ہے وہ بھی، اور مڈل میٹرک جتنا بھی ایجوکیشن ہوتی تھی وہ نکاح خاں مقرر ہو جاتا تھا۔ لیکن اب جو حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نکاح خان کی ایجوکیشن ہونی چاہیے، اس سلسلے میں جو نکاح خان ہے اس کی کم از کم ایجوکیشن جو ہے تعلیم جو ہے وہ میٹرک کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ محکمہ بلدیات نے یہ سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کیا ہے۔ لیکن جو پہلے سے جو نکاح خان مقرر ہے وہ رہیں گے، وہ اگر کوئی میٹرک پاس سے کم بھی ہے تو وہ رہیں گے، لیکن آئندہ کے لیے جو ہے وہ میٹرک پاس جو ہے نکاح خاں یا دینی تعلیم کی میٹرک پاس کے برابر ڈگری جو ہے وہ رکھنے والا جو فاضل یا عالم یا مولوی جو ہے وہ قاری وہ نکاح خاں بن سکے گا۔ لیکن جو جی کیسر کھوکھر، آپ کا بہت شکریہ۔ ادھر لیسکو میں سنگل فیز میٹرز کا سٹاک ختم ہو گیا۔ سٹاک ختم ہونے سے صارفین کے ہزاروں کنیکشن التوا کا شکار ہو چکے ہیں۔ ڈیمانڈ نوٹس قیمت میں لاکھوں کی وصولی کے باوجود کنیکشن نہ دیے جا سکے۔ مزید جانتے ہیں صورتحال کے بارے میں شاہد سپرا سے۔ شاہد سپرا، بتائیے۔
जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सिंगल फेज मीटर का स्टॉक खत्म हो गया है, जिसकी वजह से ना सिर्फ न्यू कनेक्शन अल्तवा का शिकार हुए हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो खराब होने वाले मीटर्स हैं उनकी तब्दीली का काम भी मुकम्मल तौर पर ठप हो गया है। ज़रा ने यह बताया है कि हज़ारों की तादाद में ऐसे सार्फिन हैं जिन्होंने सिंगल फेज मीटर हासिल करने के लिए लाखों रुपए के डिमांड नोटिस मुख्तलिफ बैंक्स में जमा करवा रखे हैं और कंपनी वो रेवेन्यू की मद में पैसे वसूल कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जानिब से तकरीबन 4 माह का वक्त गुजरने के बावजूद सिंगल फेज मीटर्स उन डिमांड नोटिस के इवज इशू नहीं किए गए और उनके मीटर्स नहीं लगाए गए। ज़रा ने मजीद ये बताया है कि लेस्को के पास माह जुलाई के बाद स्टॉक खत्म होना शुरू हो गया था, लेकिन गुज़श्ता 4 माह के दौरान रीजनल और फील्ड स्टोर्स में सिंगल फेज मीटर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से सार्फिन दर ठोकरें खाने पर मजबूर हैं और जब भी वो दफातर में जाते हैं तो अफसरान और मुलाजमीन की जानिब से उनको जवाब दिया जाता है। बहुत शुक्रिया शाहिद सिपर हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने एलडीए को मेगा मंसूबों की प्लानिंग की जिम्मेदारियां सौंप दी। एलडीए टावर एलडीए सिटी में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। क्या क्या टास्क सौंपे गए हैं जानेंगे दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने एलडीए हुकाम को बहुत अहम टास्क सौंपे हैं, जिसमें लाहौर की डेवलपमेंट के हवाले से और एलडीए के एक फ्यूचर विजन जो रेवेन्यू जनरेशन है उसके हवाले से अहम फैसले किए गए। गुज़िश्ता रोज़ मीटिंग की अंदरूनी कहानी ये सामने आई है, जिसमें इंजीनियरिंग विंग की जानिब से और डीजीएलडी की जानिब से मुख्तलिफ मनसूबों में जब ब्रीफिंग दी गई तो चीफ सेक्रेटरी चूँकि खुद भी डीजीएलडी रह चुके हैं और काफ़ी मुतहर्रिक डीजीएलडी थे, तो उन्होंने कहा कि जो एलडीए टावर का मनसूबा एक हुआ करता था, एलडीए टावर के लिए ज़मीन मुख्तस थी, फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर में बड़ा प्लॉट था, उसका क्या बना, उस पर एलडीए टावर जो है फौरी तौर पर शुरू किया जाना चाहिए। इस हवाले से उन्होंने डिज़ाइन फिजिबिलिटी हर तरह से हर लिहाज से इंजीनियरिंग विंग को हिदायत की है कि फौरी तौर पे इस पर डिज़ाइन करें, प्लान करें, कौन सा प्लॉट मुख्तस कर रहे हैं, कौन सी प्लॉट पे कितनी फ्लोर, कितनी हाइट और किस तरह से किस मंजिला इमारत बनेगी, जिसको एलडीए टावर का नाम दिया जाएगा। और उसके अंदर एलडीए अपना रेवेन्यू जनरेट भी करेगा, अपने मुख्तलिफ दफातर को भी चला सकेगा, मुख्तलिफ एमिनिटीज़ होंगी जिसको यूटिलिटी में लाया जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लॉट है जो एलडीए टावर के लिए मुख्तस है और वो ज़ाया जा रहा है और उस पर इतना डिले करने से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कहाँ पहुँच गई है। दूसरा टास्क एलडीए सिटी मनसूबे में हल्लोकी के मुकाम पे 850 कनाल पर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो बनाया जाना है उस पर ब्रीफिंग ली गई। उस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि इसको मज़ीद पॉलिश करें, इस प्रोजेक्ट को मज़ीद अच्छे तरीके से बेहतर करके जो है वो एक दफ़ा दोबारा प्रेजेंटेशन दी जाए ताकि उसको वज़ीर आला के सामने ले जाया जाए। वो तमाम तर फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं जो लाहौर के जो मॉडर्न डिफेंस कमर्शियल एरिया में या किसी भी मॉडर्न कमर्शियल एरिया में मौजूद होंगी। जी, तफ्तीशी अफसरान के केसेस की तफसीलात और तैयारी ना होने का ये मामला है। केसेस की तैयारी मुकम्मल ना होने पर आला अफसरान की बार बार सरजनिश की गई। आईजी के हुक्म पर आला अफसरान और तफ्तीशी अफसरान के लिए नया हुक्मनामा जारी किया जा चुका है। उसमें क्या हिदायत जारी की गई हैं, तफसीलात बताएंगे अली साही। जी अली साही। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर से रोज़ाना की बुनियाद पर तफ्तीशी अफसरान जो हैं वो अदालत आलिया में मुख्तलिफ केसेस के सिलसिले में पेश होते हैं। मुतअद्दिद केसेस में नाकस तैयारी होने की वजह से, तफ्तीश मुकम्मल ना होने की वजह से आला अफसरान की सरजनिश भी होती है और उनकी बार बार तलबी भी होती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आईजी पंजाब की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि आइंदा तमाम जो तफ्तीशी अफसरान हैं जो भी अदालत आलिया में पेश होंगे वो 8 बजे पूरे डीपीजी के दफ्तर में पहुंचेंगे। परफार्मा के मुताबिक तमाम जो केस की हिस्ट्री है उससे आगाह करेंगे। अगर किसी जगह पे कोई तफ्तीशी अफसर लेट होगा तो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल के लॉ अफसर को बाकायदा तौर पर आगाह करेगा और जब तक केस की हेयरिंग मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक वो अदालत नहीं छोड़ेगा। अगर किसी भी केस में तफ्तीशी अफसर की नेगलिजेंसी होगी तो उसको खिलाफ सख्त एक्शन होगा। लॉ अफसर बाकायदा तौर पर आईजी पंजाब को आगाह करेगा और किसी भी जगह पे नेगलिजेंसी शो नहीं होनी चाहिए, चूँकि बहुत सारे केसेस में आला अफसरान की इसी वजह से जो सरजनिश होती है। तो आइंदा ऐसे तमाम सिलसिले को रोकने के लिए आईजी पंजाब ने वाज़ेह हदायत जारी कर दी गई हैं कि कोर्ट में पेशी से पहले तफ्तीशी अफसरान बाकायदा तौर पर तैयारी करके आएँ और एज पर SOPs तमाम तफसीलात जो हैं वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर को फराहम करें। अली साही हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शहर की ओपन मार्केट में एशियाई कुरोनोश की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ब्लैक इलायची 50 ग्राम 15 रुपए बढ़कर 475 रुपए की हो गई। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली हैं। जी शहजाद।
कि ओपन मार्केट के अंदर मुख्तलिफ बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। आज मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में 10 से लेके 20 रुपए का इजाफा जो है वो ओपन मार्केट के अंदर देखा जा रहा है, जिसमें जो ब्लैक इलायची है ये 50 ग्राम 15 रुपए इजाफे के बाद 475 रुपए में अब सार्फिन को मिल सकेगी। और इसी तरह जो मारूफ कंपनी की चाय है ये 350 ग्राम का पैक जो है वो 10 रुपए इजाफे के बाद 720 रुपए में सार्फिन को दस्तयाब होगा। इसके अलावा शक्कर जो पैकिंग वाली है मुख्तलिफ कंपनियों की ये 500 ग्राम 10 रुपए इजाफे के बाद 145 रुपए में सार्फिन को दस्तयाब होगी। इसी तरह मुख्तलिफ कंपनियों की पैकिंग वाली सुर्ख मिर्च जो 400 ग्राम का पैक है ये 10 रुपए इजाफे से 420 रुपए में अब सार्फिन के लिए दस्तयाब होगा। इसी तरह जो पिसी हुई हल्दी इसकी कीमतों में भी 200 रुपए। शहजाद आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब की 18वीं सूबाई असम्बली का पहला पार्लिमानी साल। असम्बली के पहले पार्लिमानी साल में मजमूई तौर पर 19 इजलास तलब किए गए। तारीख में पहली मरतबा एक साल में 8 इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर तलब किए गए। मजीद अहवाल बताएंगे राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, पंजाब की 18वीं मजमूई तौर पर ये असम्बली है और मौजूदा असम्बली का पहला पार्लिमानी साल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अगर कारकर्दगी की बात की जाए तो अब तक जो है वो पहले पार्लिमानी साल में मजमूई तौर पर 19 इजलास तलब किए गए। अगर बात की जाए तो अरकान असम्बली की जानिब से 68 तहरीके इस्तेहकाक जमा करवाई गई हैं, जिनमें से 38 तहरीके इस्तेहकाक को जो है वो टेकअप किया गया है, कमेटी के सुपुर्द किया गया है। जबकि इसी तरह से जो दीगर जिनमें से 68 ऐसी तहरीकें हैं जो कि मजमूई तौर पर जमा तो कराई गई हैं, लेकिन 35 ऐसी तहरीकें इस्तेहकाक थी जिनको के डिस्पोज ऑफ किया गया है और जिनको निपटा दिया गया है। जबकि मुफाद आमा से मुतालिक मजमूई तौर पर जो अरकान असम्बली की जानिब से तहरीके इल्तवाए कार जमा करवाई गई उसकी तादाद 558 है और अरकान असम्बली ने 264 तहरीके इल्तवाए कार जो है वो जमा करवाई, जबकि 219 तहरीके इल्तवाए कार पर कार्रवाई जो है। ठीक है, राव दिलशाद हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। महकमा लेबर ने मुकर्रर करदा उजरत के नफाज को यकीनी बनाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। मजदूरों को 37,000 रुपए माहाना उजरत की अदायगी यकीनी बनाने के लिए मुहिम का आगाज। डिटेल्स बताएंगे हमारे साथ कलीम अख्तर हैं। जी कलीम। बिल्कुल, महकमे लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज की जानिब से कम अज़ कम उजरत के नफाज को यकीनी बनाने के लिए इकदामात करने का अमल शुरू कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर की हदायत के पेश नज़र स्पेशल टीमें भी तश्कील दी गई हैं और ये जो टीमें हैं डायरेक्टर जनरल लेबर कलसूम हाई की ज़ेर निगरानी पंजाब भर में मुख्तलिफ जो सनती और तजारती शोबे हैं उनका विजिट कर रहे हैं। इब्तदाई तौर पर इन तंजीमों की टीमों की जानिब से बाकायदा तौर पर इस मुहिम के तहत तकरीबन 10,094 के करीब जो सनती और जो इसके अलावा दीगर तजारती शोबे हैं उनका दौरा किया गया है और कम अज़ कम उजरत के नफाज को यकीनी न बनाने वालों के खिलाफ भी मुकदमात का अंदराज किया गया है, जो कि 3,942 के करीब हैं। जबकि इसके अलावा जो दीगर सनती और तजारती शोबे हैं उनका भी रोज़ाना की बुनियाद पर दौरे किए जा रहे हैं और बाकायदा तौर पर जो टीमें हैं इनकी भरपूर निगरानी भी की जा रही है। जबकि इस हवाले से जो सूबाई वजीर है उनकी जानिब से कहा गया है कि सरकार की जानिब से 1,000 रुपये जो उजरत है कम अज़ कम मजदूर के लिए। कलीम, बहुत शुक्रिया आपका। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल आउटसोर्स स्कूल्स की मॉनिटरिंग असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के सपोर्ट कर दी गई है। अब तमाम AEOs को मुआयना अलाउंस सिर्फ तसल्ली बख्श रिपोर्टिंग पर दिया जाएगा। महकमा तालीम की जानिब से क्या कहा गया, इस हवाले से जुनेद रियाज हमें आगाह करेंगे। जी जुनेद। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स की जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा कर दिया गया है। इससे कबल प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की मॉनिटरिंग जो है वो AEOs के ज़िम्मे थी। अब जो है हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी AEOs जाकर जो है वो क्लास ऑब्जर्वेशन का जायजा लेंगे और इस हवाले से उनको ये भी हिदायत की गई है कि जो आउटसोर्स स्कूल्स किए गए हैं जिनकी तादाद 5,000 से ज़ायद है उनको भी मॉनिटर जो है करना AEOs की जिम्मेदारी में शामिल होगा। इस हवाले से AEOs को अहकाम जारी किए गए हैं कि उनकी मसावी तकसीम जो है वो की जाए। इससे कबल का बाज़ AEOs 1 या 2 स्कूल भी जो है वो मॉनिटर करते थे, अब बराबरी की बुनियाद पर जो है वो स्कूलों को में तैनाती की जाएगी AEOs की। उसके बाद वो स्कूलों का विजिट करेंगे। इस हवाले से डिप्टी DOs
اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ AEOs کی جو نگرانی کریں اور اس کی رپورٹ جو ہے محکمہ اسکول ایجوکیشن کو بھجوائیں. اس حوالے سے محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ہدایت کی ہے کہ 20 دسمبر تک جو ہے جو تمام تر ڈیوٹیاں لگانے کے بعد. ٹھیک ہے جنید ریاض ہمارے ساتھ اپڈیٹ بہت شکریہ.